my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study the reactions of phenol. As I told you in the last lecture that phenol is one of the most important topic. So don't forget to learn all the preparation and reactions of phenol. So here we have total 10 reactions given by phenol and we will do all the reactions easily. Okay. So you can see over here, first we will react it with nitric acid, that is HNO3, at 298 Kelvin, and we will do the same reaction in the presence of concentrated H2SO4 and we will get different products. Now we will react with sulfuric acid. Do you guys remember what is sulfuric acid? It is H2SO4. So we will react it with sulfuric acid at 293 Kelvin at 393 Kelvin. Then we will react it with bromine. What is bromine? It is Br2. Okay, so we'll react it with bromine in presence of water, then in presence of CS2, that is carbon disulfide. Then we will react phenol with zinc, hydrogen, and then there are two most important reactions, that are Kolbe reaction and Riemer-Tiemann reaction. This Riemer-Tiemann reaction is asked in board many times, so don't forget this reaction. Now we'll start with the reactions. First is reaction of phenol with nitric acid. So as I told you, it is HNO3. So can I write HNO3 as OHNO2? It makes sense, right? So what we will do, we will react this phenol with HNO3, that is nitric acid, at 298 Kelvin. Okay, so don't forget to mention the temperature, as the change in temperature will change the products. Okay, so you have to mention the reagents and the temperature over here. Okay, so now students, we have taken this phenol over here and this nitric acid is over here. Now what will happen over here, as you can see, there are two phenols, right? So first draw these phenols, and now there are two NO2 groups. Okay, so this NO2 will take position in phenol. One will go at the ortho position and one will go at the para position. Okay, now what is remaining over here? This 2OH, and here since we have put NO2 over here, so this hydrogen is replaced. So there are two hydrogens removed, they will get combined to this 2OH. Okay, so there will be formation of 2H2O. समझ रहे हैं? यहाँ पे मेरे पास दो OH था एंड आई एडेड टू हाइड्रोजन्स फ्रॉम ओवर हियर. तो ये क्या बन गया? कितने H है अपने पास? 4 H है, तो 2H2 और 2 ऑक्सीजन, तो 2. ठीक है, और फिर मैंने NO2 जो है यहाँ पर अटैच कर दिया. अब सिंस ये ऑर्थो पोजिशन पे है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. एंड यहाँ पर ये पैरा पोजिशन पे है, तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल. ईजी. अब बच्चों नाइट्रिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करना है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4. तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो NO2 है, 3 NO2 ग्रुप है, राइट, ये जाकर यहाँ पे 246 पोजीशन ले लेंगे. ठीक है, फिनॉल को वैसे ही ड्रॉ करो एंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर, देयर आर 3 नाइट्रो ग्रुप्स, राइट. सो दे विल ऑक्यूपाई दिस पोजिशन 2, 4, 6. अब सिंस ये यहाँ पे आए हैं तो किसी चीज़ को रिप्लेस किया है. किसको रिप्लेस किया? यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोजन प्रेजेंट था ना. तो यहाँ से मेरे 3 हाइड्रोजन निकल गए. पहले से मेरे पास 3 OH ये बचा था, है ना. 3 नाइट्रो ग्रुप इधर गए, 3 OH इधर बचा. यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकले. टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए. इसको 3H2 लिखूँ और ऑक्सीजन कितने हैं? 3. तो मेरे पास बाहर क्या निकला? 3H2O. एक तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है. वॉट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज 2, 4, ऐसे नेमिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. मेरे पास एक ये प्रोडक्ट बना एंड देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. फिनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इट इज़ H2SO4. तो क्या मैं H2SO4 को ऐसे लिखूँ OHSO3H, राइट? इट मेक्स सेंस ना. ऐसे भी लिखो, आपको इजी पड़ेगा रिएक्शन करने में. अब बच्चों क्या होगा, ये जो SO3H है, सल्फोनिक ग्रुप है, ये आपका पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा. ये जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर आ जाएगा. तो पहले आप सही से फिनॉल ड्रॉ कर लो और क्या होगा, ये जो सल्फोनिक ग्रुप है, इट विल ऑक्यूपाई दिस ऑर्थो पोजिशन. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड.
ठीक है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड जो है वो एक हाईली प्रायोरिटाइज्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको सल्फोनिक एसिड डालेंगे। ठीक है, इसको आपने एज अ प्रीफिक्स नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये हाईली प्रायोरिटाइज है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने SO3H डाला, मतलब यहाँ पे बाहर कुछ निकला है। क्या निकला है? हाइड्रोजन। मेरे पास यहाँ पे क्या बचा था? OH, और मेरे पास एक हाइड्रोजन है। क्या मिलकर बन गया बच्चों? H2O बन गया। तो मुझे मिल गया 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये हाईली प्रायोरिटाइज है इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दिया, फिर 2, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और बाद में बाहर निकला H2O। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे एंड इट इज़ वेरी इजी रिएक्शन, बट द थिंग इज नाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट एट 393। तो बच्चों सेम ही होने वाला है, बस ये जो SO3H ग्रुप है दैट इज योर सल्फोनिक ग्रुप विल नॉट ऑक्यूपाई ऑर्थो पोजिशन, इट विल ऑक्यूपाई पैरा पोजिशन। जब आप पैरा पोजिशन पे करोगे तो क्या होगा, देख लो, दिस इज SO3H ओवर हियर। नाउ नेम इट। तो पहला ये हाईली प्रायोरिटाइज है, तो ये 1 2 3 4, तो क्या बन गया ये? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे OH है, क्या बन गया बच्चों? H2O। ईजी। अब हम करने वाले हैं Br2 के साथ रिएक्शन। तो जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो इन वाटर, तो जब आप वाटर के साथ करोगे बच्चों क्या होगा देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे 6 Br है ना, इसमें से 3 Br दे विल ऑक्यूपाई द 2 4 6 पोजिशन। ओके, फर्स्ट ड्रॉ द फिनॉल, और मैंने आपको क्या बताया, सिंस देयर आर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, तो उसमें से क्या होगा, जो 3 Br है दे विल ऑक्यूपाई द 2 4 एंड 6 पोजिशन। तो इसका नाम रख लो फटाफट से, इट इज़ 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 6 Br थे, इसमें से 3 ऑक्यूपाई हो गए, मतलब 3 Br इधर बचे। अब इन्होंने यहाँ पे किसी को रिप्लेस किया ना, ये 3 जगह लिए आके 2 4 6, तो किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो मेरे पास 3H है, 3 Br है, दोनों मिलकर बन गया 3HBr, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझा? Br2 को वाटर के साथ आप मतलब फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो यू विल गेट 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नाउ स्टूडेंट Br2 के साथ ही रिएक्ट करना है, बट इन प्रेजेंस ऑफ CH2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे 2 फिनॉल ले लो और 4 ब्रोमीन एटम्स ले लो, ठीक है, और CH2 का प्रेजेंस में करना है ये, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आपके 2 फिनॉल है, तो 2 फिनॉल को ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये मेरे 2 फिनॉल आ गए। अब ये 4 जो ब्रोमीन है उसमें से 2 ब्रोमीन आएंगे, एक ऑक्यूपाई करेगा ऑर्थो पोजिशन, जो हमने नाइट्रिक एसिड के केस में किया था वही करना है, एक ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा और एक पैरा पोजिशन। इसका नाम पड़ जाएगा 2 ब्रोमो, या उसको ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल भी बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और बच्चों बाहर क्या निकलेगा, इधर मेरे पास 4 Br थे, 2 मैंने यूज़ कर लिए, एक ऑर्थो पे गया एक पैरा पे गया, तो 2 Br इधर यूज़ हो गए और 2 Br बच गए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। बाहर क्या बच गया बच्चों मेरा? 2HBr। अंडरस्टूड? अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं, फिनॉल को ही रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जिंक जो है रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब क्या बचा है? सिर्फ हाइड्रोजन ही है इधर, मतलब ये पूरा क्या बन गया? हाइड्रोजन को मुझे शो करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये क्या बन गया है? क्या है ये? बेंजीन है ना। तो मैंने क्या किया, फिनॉल लिया, उसको जब जिंक के साथ में रिएक्ट करती हूँ, सो व्हाट आई गेट एज द प्रोडक्ट? आई गेट बेंजीन, एंड साथ में मेरा बाहर क्या निकल गया? जिंक ऑक्साइड। फिनॉल को रिएक्ट करने वाले हैं विथ हाइड्रोजन। ना स्टूडेंट व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पे मेरे पास 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास फिनॉल है उसमें मुझे ये 6 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो मैं इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकती हूँ, राइट। तो अब क्या होगा, हर एक पोजीशन पे मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट द टेम्परेचर ऑफ 433 केल्विन। आपको पता है जो बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो जब मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ डबल बॉन्ड्स खुल जाएंगे, तो मुझे ये रिंग शो करने की जरूरत नहीं होगी। दिस रिंग, व्हाट डज दिस रिंग रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द डबल बॉन्ड्स।
बट जब मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ तो डबल बॉन्ड तो खुल जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ क्या शो करना है, ये मेरा बेंजीन का रिंग, एक्चुअली बेंजीन नहीं, दिस इज साइक्लो कंपाउंड का रिंग, ठीक है। और ये OH को ऐसे ही रहने देना है। तो पहले मेरे पास क्या था, ये फिनॉल था, है ना, बट अब मैं इसको फिनॉल नहीं बोल सकती। फिनॉल कब होगा, जब बेंजीन रिंग पर OH अटैच होगा, बट ये बेंजीन है क्या, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको मैं फिनॉल नहीं बोलूँगी। बस मुझे क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन लिख दो, एंड सिंस यहाँ पे OH है तो आपको पता है सफिक्स क्या लगाना है, ऑल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फिनॉल को जब मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, बेसिकली उसमें हाइड्रोजनेशन करवाया, सो आई गॉट साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अब बच्चों ये 8 रिएक्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। लास्ट बचा है कोल्बे रिएक्शन एंड रीमर-डीमन रिएक्शन, विच आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सो विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।